Hello everyone, welcome back to the channel Chemistry is Life. As you know that in previous lectures we are completing the vast topic that is the nomenclature of organic compounds. In this topic we are already completed the 5 video parts for the different compounds nomenclature. Now in today's lecture we are going to conclude the nomenclature of aldehydes and ketones. Both the functional groups are very much important and the nomenclature is always asked in the examinations, whether it is a L1 12th or whether it is a BSc students. So let's today learn about the nomenclature of aldehyde ketones, and before that I will teach you namely what is the meaning of aldehyde and how they are prepared, and what is the meaning of ketone and how they are prepared. After that we will go to the nomenclature of aldehyde and ketones both simultaneously. So let's start the nomenclature of aldehydes and ketones. Now under this heading there is a title nomenclature of aldehydes and ketones. First of all we will learn about what is aldehyde and what is ketone. Here the word is aldehyde. Now simply these aldehydes are the dehydration product of alcohols. What about the alcohol? We know alcohols are R, CH2OH. This is a alcohol. Which alcohol? Yesterday in previous video lecture we have learned the types of alcohols, classification of alcohols, that we have learned primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol. So this alcohol is of primary alcohol because this OH group attached to only one carbon, so it is a primary alcohol. This primary alcohol when undergo dehydration, okay, dehydration means nothing but, in another words we call it as a oxidation. Correct. We know the meaning of oxidation. There are 3 different definitions of oxidation. What are those? Oxidation means loss of electron. Again, oxidation means removal of hydrogen. Again, oxidation means addition of oxygen. अगर इतना सब हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? ऑक्सीडेशन बोलेंगे. ये केस में क्या हो रहा है देखो, दिस कार्बन हैज हाउ मेनी हाइड्रोजन्स? This carbon has 2 hydrogens. Am I right? It is having 2 hydrogen. Now I am telling you the aldehydes are the dehydration products of this alcohol. यानी कि अल्कोहल में से dehydration. What is the meaning of this dehydration? Right? D means removal. अब यहाँ से देखो क्या रिमूव होने वाला है. Removal of hydrogen. What? Removal of hydrogen. अगर ये कंपाउंड में से हाइड्रोजन रिमूव होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे सिंपली. तो मीन्स अगर अल्कोहल का, किसका? अल्कोहल का अगर अपन क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन, दैट विल बी कॉल्ड एज, हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ aldehyde. When there is a oxidation of alcohol, there is a formation of aldehyde. Now how will this happen? ये कार्बन है. कार्बन कितने हाइड्रोजन है? There are 2 hydrogens, right? इसमें से एक हाइड्रोजन को लॉस करो, there is a removal of this hydrogen. Correct. तो कितने बचे फिर इसके अंदर? R, C, here 1 H and this O, this H. ये इस तरह से है. डायरेक्ट सिंगल स्टेप में करने का अगर बोले तो इन दिस वे, ये यहाँ से H और ये यहाँ से H, क्या लॉस हो गया? H2 लॉस हो गया. देयर इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन H2. तो बचा क्या फिर? इन दिस वे. इन सिंगल स्टेप आई हैड टोल्ड यू बोथ द रिएक्शंस. 2 हाइड्रोजन लॉस हो गए. तो यहाँ पे जो बच रहा, अगर ये कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन की वैलेंसी तो फुलफिल है नहीं अब यहाँ पे, है ना? ये बॉन्ड टूट गया इसका. एंड वी नो कार्बन ऑलवेज फॉर्म हाउ मेनी बॉन्ड्स? 4 बॉन्ड्स. So here is the removal of this bond. This carbon wants to get stable, so this carbon makes a double bond with this oxygen. क्योंकि ये ऑक्सीजन का इधर का एक बॉन्ड टूट गया तो इसका भी वैलेंसी इनकम्प्लीट है, और ये कार्बन की ये वाला बॉन्ड टूट गया तो ये भी इनकम्प्लीट है. जब दोनों भी इनकम्प्लीट होंगे तो दोनों क्या करेंगे आपस में? Here is a formation of double bond. So this RC double bond OH, and we know that the functional group of aldehyde is nothing but this RCHO. Count करो, RCHO. Okay, this is the functional group of aldehyde. Aldehyde क्या है फिर? Aldehyde is nothing but it is the oxidation product of alcohol. Alcohol से हम aldehyde बना सकते हैं, right? So this is the structure of aldehyde. अब ये जो aldehyde में जो तुमको स्ट्रक्चर मिल गया है, कैसा मिला? ये RC डबल बॉन्ड O. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे कार्बोनिल ग्रुप. इसका नाम क्या है? कार्बोनिल ग्रुप. This is a carbonyl group, right?
अगर ये कार्बोनिल ग्रुप को सेम C डबल बॉन्ड O मतलब कार्बोनिल ग्रुप है, अगर इसको एक हाइड्रोजन लग गया, क्या लग गया? हाइड्रोजन. इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वन हाइड्रोजन इट इज कॉल्ड एज अल्डिहाइड. इसको क्या बोलेंगे? अल्डिहाइड बोलेंगे. कार्बोनिल ग्रुप का अगर मिनिमम एक हाइड्रोजन लग गया तो इट इज कॉल्ड एज अल्डिहाइड. और अगर इस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि दूसरे दो अल्किल ग्रुप है, मैं आर आर दिखाता हूँ इधर, या फिर आर आर डैश दिखाता हूँ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर? आर मीन्स अल्किल ग्रुप. कोई भी अल्किल ग्रुप होगा, अल्केन होगा, अल्कीन होगा, अल्कैन होगा, कुछ भी होगा, मगर ये कार्बोनिल ग्रुप का अगर दोनों तरफ से भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, तो जब हाइड्रोजन नहीं रहता उसको क्या बोलेंगे? कीटोन. दैट इज कॉल्ड एज कीटोन. C डबल बॉन्ड O. उसके साइड में जो अगर अल्किल ग्रुप है तो कीटोन, अगर मिनिमम एक हाइड्रोजन है तो अल्डिहाइड, और इसको बोलेंगे कार्बोनिल ग्रुप. ये जो CO है ये क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है. समझ में आया? फिर अल्डिहाइड किसको बोलेंगे? अल्डिहाइड. दिस इज कीटोन. सबसे पहले वन बाय वन चेक करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्डिहाइड्स. Now you also write with me the examples of aldehyde. Okay. First of all, nomenclature के अंदर अपने को क्या पता है? अपन ने एक फार्मूला बनाए थे. क्या फार्मूला बनाए थे nomenclature के वास्ते? किसको पहले लेंगे, किसको बाद में लेंगे, इस तरह से फार्मूला बनाए थे. राइट. व्हाट इज द फार्मूला? द फर्स्ट नंबर इज सेकेंडरी प्रीफिक्स. सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स. आफ्टर दैट वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स. अब ये सब क्या है देखो. सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आएंगे? इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर सब्स्टिट्यूएंट. किसके लिए यूज़ करेंगे? अगर अपने कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि अगर अपनी लॉन्गेस्ट चेन अपन ने सेलेक्ट की, उसको छोड़ के अगर कोई और ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूएंट. सब्स्टिट्यूएंट को पहले लेंगे. मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल जो भी है उसको पहले लेंगे. ब्रोमो, क्लोरो, ये सब पहले आ गए. यानी कि वर्ड रूट, अपनी जो पेरेंट चेन है उसको अपन ने क्या बोले हैं? वर्ड रूट बोले. दिस बिफोर द वर्ड रूट द सब्स्टिट्यूएंट शुड बी नेम. उसके बाद क्या है? प्राइमरी प्रीफिक्स. प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या क्या आएंगे? अगर अपना कंपाउंड साइक्लिक रिंग का है तो क्या लिखेंगे? साइक्लो लिखेंगे. साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लो लगाते हैं ना उसके आगे, तो वही साइक्लो यहाँ पे आएगा. अगर स्पायरो है तो उसके आगे स्पायरो कंपाउंड्स नहीं है तो स्पायरो लगाएंगे. ये सब क्या है? प्राइमरी प्रीफिक्स. प्री मीन्स पहले, वर्ड रूट के पहले, तो बोले प्रीफिक्स. ये सब क्या है? सफिक्स है. सफिक्स मतलब वर्ड रूट के बाद आएंगे. ये जो प्राइमरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स में क्या कहेंगे? अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखने का? ANE लिखने का. राइट. इफ देयर इज अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो क्या लिखने का? ENE लिखने का. इफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड देन YNE. दीज आर द प्राइमरी सफिक्सेस. और इनको छोड़ के अब जो भी अपने मेन फंक्शनल ग्रुप हैं, सपोज अगर OH है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, अगर अपने स्ट्रक्चर के अंदर OH है तो उसका सफिक्स क्या बनता? OL बनेगा. राइट. अब अपन देख रहे हैं अल्डिहाइड. अल्डिहाइड यानी कि ये वाला फंक्शनल ग्रुप है. अगर तुमको ऐसा ग्रुप दिखा स्ट्रक्चर के अंदर तो उसके एंडिंग में क्या लगाएंगे? अब जस्ट AL. अल्कोहल को OL लगा देते, अल्डिहाइड को AL लगा देने का. अगर तुम्हारे स्ट्रक्चर में कीटोन है तो उसको सफिक्स क्या लगाएंगे? द सफिक्स फॉर कीटोन इज ONE. राइट. These are the suffix for ketones. तो आप लेंगे पहला एग्जाम्पल. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर अबाउट द aldehyde. So write down the heading, the nomenclature of aldehyde. Nomenclature of aldehyde. Simple. What is the general representation? R C double bond O H. है ना? एक हाइड्रोजन होना जरूरी है. मिनिमम देयर शुड बी वन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन. राइट. एंड वन मोर थिंग, ये जो अल्डिहाइड्स हैं, अल्डिहाइड्स आर टर्मिनल ग्रुप्स. क्या है? टर्मिनल. यानी कि ये हमेशा एंड पर ही आएगा. ऐसा अल्डिहाइड कभी भी सेंटर में नहीं मिलेगा. दो कार्बन के बीच में अल्डिहाइड कभी नहीं आएगा, है ना? क्योंकि अगर इधर से अल्डिहाइड, ये हाइड्रोजन हट गया और कार्बन आ गया तो ये क्या बन गया? कीटोन बन गया ना. अगर दो कार्बन आ गए तो क्या बन गया? कीटोन. अल्डिहाइड के लिए क्या चाहिए? देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ मिनिमम वन हाइड्रोजन. यहाँ पर हाइड्रोजन होना ही होना है. राइट. तो सपोज मैं क्या करा, पहला एग्जांपल ले रहे हैं अपन. ये R की जगह पे सपोज मैंने क्या लगाया? और एक S लगा दिया. क्या लगा दिया? H. तो क्या बन गया? HC डबल बॉन्ड OH. राइट. HC डबल बॉन्ड OH. एक कार्बन है.
अल्डिहाइड है ये, क्योंकि अपने अल्डिहाइड के लिए क्या चाहिए, सिर्फ अपने को इतना चाहिए, सिर्फ आर सी डबल बॉन्ड OH इतना दिख गया तो क्या बोलेंगे, इसको अल्डिहाइड बोलेंगे। तो ये अब ये जो कार्बन है इसको अपन नॉमेनक्लेचर के अंदर कंसिडर करेंगे, राइट। इसको काउंट करने का, आप इसको भी काउंट करना। तो एक कार्बन है, फॉर वन कार्बन व्हाट इज द वर्ड रूट, C1 के लिए वर्ड रूट क्या होता है, क्या होता है, मिथ। तो लिखो यहाँ पे मिथ, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो प्रीफिक्स की तो कोई काम ही नहीं है ना, रिंग टाइप स्ट्रक्चर नहीं है तो इसका यहाँ प्रीफिक्स का भी कोई भी काम नहीं है, डायरेक्ट कहाँ गए अपन, वर्ड रूट पे गए। वर्ड रूट फॉर सिंगल कार्बन इज मिथ। कार्बन का ये जो सिंगल बॉन्ड्स है इधर के ग्रुप के साथ, इसलिए क्या लगाने का, ANE, ऑब्वियसली ANE हम पकड़ेंगे पहले, बट ये जो डबल बॉन्ड OH है ये ग्रुप अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या होता है, AL। यहाँ पे क्या लिखेंगे, AL, राइट। नाम क्या बन गया, मिथेनल, राइट। बट रूल क्या बोलेंगे, जब दो वॉवेल्स एक जगह आएंगे, है ना, इंग्लिश में वॉवेल्स होते हैं ना, AEIOU, जब दो कोई भी वॉवेल्स एक जगह आते हैं तो कोई तो एक वहाँ पे डिलीट होता है, तो यहाँ से हम क्या डिलीट करेंगे, इस E को डिलीट करेंगे और जो बचा है वो कंबाइन करो, क्या बन गया इसका नाम, मिथेनल। करेक्ट है, सिंपल है, जस्ट वर्ड रूट लो, सिंगल बॉन्ड का AN लगाओ और आगे सफिक्स लगाने का, ये तो भूलना नहीं है, अल्डिहाइड के लिए स्पेशल है वो AL वाला, क्या बन गया, मिथेनल। करेक्ट, दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल। चलो आगे जाएंगे। अब R के जगह पे मैं क्या लगाता हूँ, CH3 लगाता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब जो IUPAC के रूल्स हैं, कई के रूल्स, IUPAC, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके हिसाब से रूल्स हैं क्या, पहले रूल क्या बोलता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब इसमें कितने कार्बन की चेन है, ऐसा गए तो भी 2 ही कार्बन है, ऐसा भी है तो 2 ही कार्बन है, तो 2 कार्बन की चेन, लॉन्गेस्ट चेन मिल गई आपको, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कर लिया, ठीक है, इस तरह से कर लो, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिए। आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, नंबरिंग करना अपने को। रूल क्या बोलता है, जो कार्बन अपना मेन फंक्शनल ग्रुप का है उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। द मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बन शुड गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे कि यहाँ से शुरू करेंगे, फिर इसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो राइट साइड से करेंगे ऑब्वियसली 1 2, 2 ही कार्बन है तो 1 2 हो गया। कितने कार्बन है, 2। फॉर 2 कार्बन द वर्ड रूट इज ईथ, सिंपल ईथ। चलो लिखो यहाँ पे फिर ईथ लिख दिया। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए अभी यहाँ पे लिखा था, सिंगल बॉन्ड रहा तो क्या लगता है सफिक्स, ANE, सिंपली लिखो यहाँ पे ANE। अपना मेन ग्रुप कौन सा है, CHO मीन्स अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या होता है, AL। यहाँ पे A की ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, क्या बन गया इसका नाम, इथेनल, राइट। इन दिस वे यू जस्ट हैव टू फॉलो द रूल्स। सपोज थर्ड एग्जाम्पल इज आई हैव टेकन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अगर इस तरह से है तो फर्स्ट रूल सेज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। कितने कार्बन की चेन हो रही है, 3। चलो नंबरिंग देना है, कहाँ से दूँ नंबरिंग, यहाँ से दूँ 1 2, नहीं कहाँ से देना है, ये साइड से 1 2 3, राइट। इस तरह से नंबरिंग दे दिए। अब क्या करेंगे, ऑब्वियसली गो टू द वर्ड रूट, क्योंकि और कोई ग्रुप अटैच है यहाँ पे नहीं है। वर्ड रूट 3 कार्बन के लिए क्या होता है, वर्ड रूट प्रोप, राइट, लिखो प्रोप। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या लगाएंगे, AN। अल्डिहाइड है अपना ग्रुप, अल्डिहाइड के लिए क्या लगाएंगे, AL। अल्डिहाइड का कोई भी नंबर क्यों नहीं दिखा रहा मैं, क्योंकि अल्डिहाइड हमेशा फर्स्ट ही होगा, इट इज ऑलवेज टर्मिनल। वो कोई तो एक एंड पर ही होगा, या तो राइट एंड पे या फिर लेफ्ट एंड पे, उसका नंबर एक नंबर ही आना है हमेशा, ठीक है ना, जब तक उससे बड़ा कोई ग्रुप यहाँ पे नहीं आता। व्हाट आई एम टेलिंग, अल्डिहाइड का एक नंबर तब तक आएगा जब तक इससे बड़ा कोई ग्रुप यहाँ पे नहीं आता है ना। यस्टरडे इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन प्रायोरिटी ऑर्डर देखे थे इसके पहले, राइट। प्रायोरिटी ऑर्डर पता है ना, यानी कि किसको पहले प्रायोरिटी देंगे हम अगर हमारे स्ट्रक्चर के अंदर। अब यहाँ पे सिर्फ अल्डिहाइड है, बट सपोज अल्डिहाइड भी आ गया और अल्कोहल भी आ गया, तो कम से कम नंबर किसको देना है, फिर 2 ग्रुप आ गए, फिर तुमको सिलेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए क्या याद रखना है, प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या बोलेगी, सबसे हाईएस्ट किसको वैल्यू है, कार्बोक्सिलिक एसिड को। अगर यहाँ पे एसिड आता था तो एसिड को हम 1 नंबर देते थे, राइट। तो सबसे हाईएस्ट किसको भाव देने का, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद किसको देंगे, सल्फोनिक एसिड्स, किसको,
सल्फोनिक एसिड वो ऐसे होता है, एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ एच, दिस इज सल्फोनिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज सल्फोनिक एसिड। इसके बाद और 2-4 कंपाउंड से, बट रिलेटेड टू दिस आवर कंपाउंड में बोल रहा हूँ। एसिड के बाद किसका नंबर आएगा फिर, अल्डिहाइड का। किसका, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के बाद आएंगे कीटोन्स, कीटोन्स के बाद आएगा आपका अल्कोहल। यानी कि अगर एक स्ट्रक्चर के अंदर अल्कोहल भी है और अल्डिहाइड भी है तो पहले किसको भाव देंगे हम, पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, अल्डिहाइड को देंगे, उसको कम से कम नंबर देंगे, राइट। अल्कोहल के बाद आएंगे अल्कीन, आफ्टर दैट अल्काइंस, आफ्टर दैट अल्केन, और इसके बाद आएंगे तुम्हारे हेलोजेंस, एंड द लास्ट देयर इज अ हेलोजेंस, ब्रोमो क्लोरो जो भी है वो सब हेलोजन यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो ये है प्रायोरिटी ऑर्डर। तो अपने को यहाँ पे अल्डिहाइड है, उसको तो 1 नंबर दे दिया अपन ने। अब आगे ऐसे एग्जांपल्स आएंगे जहाँ पे 2 या 3 ऐसे तरह के स्ट्रक्चर होंगे, उस टाइम पे ये प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करना है, ठीक है। देन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज आपका स्ट्रक्चर ऐसे है, व्हाट द रूल सेज, रूल क्या बोलता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। हाँ, कौन सी लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3 ऐसा गए, या फिर 1 2 3, कहीं से भी गए तो 3 नंबर ही आ रहे हैं, है ना। ऐसा भी आ गया मैं 1 2 3 तो 3 ही है, 1 2 3 गया तो भी 3 ही है, राइट। बट तुम 1 2 3 ऐसी चेन सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर ये चेन सेलेक्ट करेंगे तो अपना जो मेन फंक्शनल ग्रुप है ये तो चेन के बाहर चला गया ना, तो ऐसे सेलेक्ट नहीं करना। जो चेन सेलेक्ट करेंगे उसमें अपनी जो फंक्शनल ग्रुप है वो उसके अंदर होना चाहिए, चेन के अंदर, राइट। तो मैं ऐसे लेता हूँ स्ट्रेट वाला, करेक्ट, ये आ गया। अब नंबरिंग देना है, कैसे देंगे, व्हाट सेकंड रूल सेज, आवर मेन फंक्शनल ग्रुप शुड गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। तो नंबरिंग राइट साइड से दूँ या लेफ्ट साइड से दूँ, राइट साइड ऑब्वियसली, 1 2 एंड 3। अब अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक क्या है, अब सब्स्टिट्यूएंट है जो कि सेकेंडरी प्रीफिक्स बोल के काम करेगा। ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट को अब वर्ड रूट के भी पहले लिखना पड़ेगा, है ना। सब्स्टिट्यूएंट अगर आ गया स्ट्रक्चर में तो उसको वर्ड रूट के भी पहले लिखेंगे। लिखते वक्त उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी, कितने पोजीशन पे है, 2, क्या लिखेंगे, 2 नंबर लिखेंगे। अब ये CH3 है, CH3 का नेम क्या होगा, मिथिल, 2 मिथिल, कॉमा, और कोई है इधर उधर नहीं है। अब क्या बचा फिर, डायरेक्ट कहाँ पे आने का, वर्ड रूट। फॉर 3 कार्बन द वर्ड रूट इज प्रोप, अगेन प्रोप इज देयर। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, राइट, क्या लगाएंगे, AN, और आखिर में बचता है अपना अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, AL, क्या बन गया नाम, 2 मिथाइल प्रोपैनल, 2 मिथाइल प्रोपैनल। ये नल ऑब्वियसली जोर से नल बोलेंगे, अगर प्रोपैनॉल हो गया तो कहाँ चला गया, वो अल्कोहल में चला गया, राइट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज now what will you do here, what the rule says, first of all select the longest chain। हाँ, सबसे पहले longest chain select करो। कितने कार्बन की हो रही है, 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4 1 2 3 4, कहीं से भी गए तो 4 कार्बन की चेन आ रही है, राइट। चलो सेलेक्ट कर लो, फिर इस तरह से मैं सेलेक्ट करता हूँ, मिल गई मुझे 4 कार्बन की। अब नंबरिंग देना है, नंबरिंग कहाँ से करूँ, राइट साइड से। इधर से करते हैं ना, मिथाइल ग्रुप ज़्यादा है ना, नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, अपना सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको देनी पड़ेगी, अपने को मेन फंक्शनल ग्रुप, इसको ज़्यादा भाव देना पड़ेगा, राइट। नंबर यहाँ से करेंगे तो इसको 1, हेयर 2, हेयर 3 और इसको 4। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, कितने हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, इनका नंबरिंग के हिसाब से लिखना पड़ेगा। कितने नंबर कार्बन पे अटैच हैं, 3 नंबर पे, कितने हैं, 2 हैं, तो मैं क्या करूँगा, 3 3, द्रो है ना, 2 है इसलिए क्या लिखूंगा, 3 3, कितने हैं, 2 के लिए यहाँ पे क्या अप्लाई करूंगा मैं, डाई, वेरी गुड, 2 के लिए क्या लगाएंगे, डाई। CH3 मीन्स मिथाइल, सो 3 3 डाई मिथाइल। कितने कार्बन हैं, वर्ड रूट लो अब, 4, द वर्ड रूट फॉर 4 कार्बन, ब्यूट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो क्या लगाएंगे, AN, और स्ट्रक्चर अल्डिहाइड का है तो क्या लगाएंगे, AL। 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटेनल,
राइट। ओके नेक्स्ट, समझ में आ रहा है? ओके द नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा इजी करते हैं आप। चलो इजी है चलो सिंपल है, बहुत इजी है। क्या करेंगे, सबसे पहले रूल क्या बोलेगा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। बस इसमें ये याद रखना है, ये जो कॉर्नर है यहाँ पे एक कार्बन, जब तक यहाँ पे और कुछ ग्रुप नहीं लिखता, अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा था Br, तो ये कार्बन नहीं है। इसके एंड पे अगर मैंने Br लिख दिया तो यहाँ पे कार्बन नहीं है, ये क्या है फिर Br हो गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखा है मैंने एंड पे, तो ये क्या हो गया आपका कार्बन, ये वाला एक कार्बन, जहाँ पे दो लाइन ज्वाइंट होंगे वो एक कार्बन है, ये कार्बन ये कार्बन। अब यहाँ पे कार्बन करूँ क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या अटैच है, ये अटैच है, नो कार्बन, राइट। कितने कार्बन हो रहे हैं, 5 कार्बन हो रहे हैं, राइट। तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, 5 कार्बन मैक्सिमम वही है क्या, 5 कार्बन ही है। चलो 1 2 3 4 5। आप क्या करेंगे, सेकंड नंबर क्या बोलेगा रूल, नंबरिंग करो, है ना। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, आवर मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बन शुड गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। तो नंबर देता हूँ मैं यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5 दे दिया नंबरिंग। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन यहाँ पे क्या बोल के ऐड करेगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, मतलब एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसको पहले लिखना पड़ेगा नाम, वर्ड रूट के पहले लेंगे। कितने नंबर कार्बन पे है, 3, क्या लिखेंगे 3, ब्रोमीन को क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो, क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो। और कुछ अटैच है क्या, नहीं है। चलो फिर क्या लेंगे आप, वर्ड रूट फॉर 5 कार्बन द वर्ड रूट इज पेंट। ओके पेंट, कार्बन कार्बन सब तरफ सिंगल बॉन्ड है, क्या लगा देंगे AN, और एल्डिहाइड के लिए AL, क्या बना नाम 3 ब्रोमो पेंटानल। ओके एल्डिहाइड की पोजीशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा फर्स्ट नंबर पे है और वो हमेशा टर्मिनल पे ही आने वाला है ना, एंड पेयर आने वाला है, इससे नंबर उसकी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओके द नेक्स्ट वन, अब थोड़ा डबल बॉन्ड वगैरह लेंगे अंदर, इससे भी इजी करता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर कार्बन के नंबर काउंट करो पहले, कितने कार्बन हैं उसके अंदर। अगर सिंपली समझ में नहीं आ रहा है, इसे डॉट बनाने का, सीधा डॉट बना देने का। यहाँ पर एक है 2 3 4 5 और ये 6, लॉन्गेस्ट चेन ये है, ठीक है ना। यहाँ पर भी कार्बन है, बट ये क्या बन गया अब, एज ए सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, राइट। वो कार्बन चेन के अंदर तो नहीं आएगा, तो 6 कार्बन की चेन मिल रही है हाईएस्ट। और कोई रास्ता है क्या, 1 2 3 4, नहीं उससे तो कम है, 1 2 3 4 5, ऐसे तो जा नहीं सकते, क्योंकि ये ग्रुप को अपने को लाइन चेन के अंदर लेने का है। 1 2 3 4 5 6, एक ही रास्ता है, 6 कार्बन की चेन है। सब्स्टिट्यूएंट है कितने इसको, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है और ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, राइट। ये सिंगल जो मैंने ड्रॉ की है लाइन, ये सिंगल लाइन का मीनिंग होता है मिथाइल। सिंगल लाइन मतलब क्या, एक CH3 होता है, राइट। तो एक मिथाइल है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ब्रोमो, मिथाइल और ब्रोमो। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, ये आता है क्या, बी आता, अब इसलिए पहले बी आता, तो पहले बी के बारे में लिखेंगे, राइट। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, सेकंड नंबर रूल, नंबरिंग दो, तो यहाँ से नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग दे दिए। पहले किसको लेने का है, ब्रोमो को, कितने नंबर कार्बन पे है, 4 ब्रोमो, देन 3 मिथाइल, हो गए सब्स्टिट्यूएंट पूरे खत्म। अब क्या बचा, अब आओ वर्ड रूट पे, कितने कार्बन है 6, तो क्या आएगा हेक्स। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है ना, तो डबल बॉन्ड वाले सब लोगों को पहले लेंगे आप, प्राइमरी सफिक्स में लेंगे। तो डबल बॉन्ड के कितने नंबर है वो भी दिखाना पड़ेगा ना, नंबरिंग 5 नंबर पे, हेक्स 5, क्या लिखेंगे EN 5 EN, और उसके बाद एल्डिहाइड का 1 AL, या फिर तुम अगर डायरेक्ट 5 EN और AL भी लिख दिए कंटिन्यू में तो भी हो जाएगा, नहीं लिखे तो भी चलेगा, 5 इनल ऐसा लिखे तो भी चलेंगे। AL का मीनिंग क्या है,
अल्डिहाइड है, इस तरह से, करेक्ट। नहीं लिखे तो भी चलेंगे, 1 AL लिखे तो अच्छा है, नहीं लिखे तो भी कुछ मार्क नहीं कट होंगे वहाँ पे, राइट। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्स 5 EN AL, this is the name of this compound, okay. And the last one now for aldehyde nomenclature. Select the longest chain, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन मिल गई। कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं देखो, ये हो गई अपनी लॉन्गेस्ट चेन। सब्स्टिट्यूएंट कितने आ रहे हैं, एक मिथाइल है, दूसरा क्लोरो है। सेकंड नंबर रूल क्या बोलेगा, नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5। तो 4 नंबर पे मिथाइल है, 4 नंबर पे क्लोरो है, राइट। पहले किसको लेंगे, क्लोरो को लेंगे, क्योंकि सी पहले है उसके नाम में, 4 क्लोरो, उसके बाद 4 मिथाइल, 4 क्लोरो 4 मिथाइल। अब वर्ड रूट लो, 5 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट होता है, पेंट। डबल बॉन्ड है क्या, कितने नंबर कार्बन में डबल बॉन्ड है, 2 नंबर से, यहाँ से शुरू हो रहा है ना, जहाँ से शुरू हो रहा है उसको लेने का, 2 नंबर कार्बन, पेंट 2 EN, अल्डिहाइड के लिए AL, सिंपल। सो इन दिस वे दिस इज द nomenclature of aldehyde. Okay, further nomenclature of ketones. Now we know that the general representation for ketone is R C double bond O R dash. This R is nothing but alkyl group, any alkyl group. यहाँ मिथाइल होगा, यहाँ भी मिथाइल हो सकता है, यहाँ भी इथाइल होगा, यहाँ इथाइल होगा, फिर मिथाइल होगा, प्रोपिल, कुछ भी हो सकता है। बट ये जो C डबल बॉन्ड O है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, ये हमेशा 2 कार्बन के बीच में आएगा। कहाँ पे आएगा, 2 कार्बन के बीच में। अगर ऐसा है तो ही वो क्या है, कीटोन है। अगर ये आ गया तो अल्डिहाइड है, सिंपल है। अपन अल्डिहाइड को क्या बोले थे, अल्डिहाइड इज अ टर्मिनल ग्रुप। टर्मिनल मतलब कोई तो एक एंड पे है, राइट एंड पे नहीं तो लेफ्ट एंड पे। बट कीटोन क्या है, कीटोन इज नॉन टर्मिनल। कीटोन कभी भी एंड पे नहीं होगा, है ना। कीटोन राइट एंड पे या फिर लेफ्ट एंड पे कभी भी नहीं होगा, कीटोन हमेशा बीच में होगा। सो कीटोन्स इज कॉल्ड एज नॉन टर्मिनल ग्रुप, राइट। अल्डिहाइड एंड एसिड आल्सो, एसिड भी जो है, एसिड भी एक टर्मिनल ग्रुप है, कभी भी एसिड एंड पे होता है। प्रोपेनोइक एसिड, बुटानिक, जो भी जितने भी एसिड के स्ट्रक्चर हैं उसमें जो एसिड है वो कभी भी टर्मिनल होगा, और ये जो कीटोन्स हैं वो क्या है, नॉन टर्मिनल है, राइट। चलो फिर पहले रख के देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अगर मैं ऐसे करूँ, फर्स्ट एग्जांपल, H अगर ले लूँ यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ले लिया सपोज मैंने CH3 ले लिया, तो ये कीटोन हो गया क्या, इज दिस अ कीटोन, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, H आ गया, C डबल बॉन्ड OH, मतलब क्या हो गया, अल्डिहाइड। तो ये तो एक ग्रुप का मेंबर है ही नहीं, है ना। ग्रुप के मेंबर होने के वास्ते क्या होना, स्ट्रक्चर में दोनों तरफ से क्या चाहिए, कार्बन ही चाहिए, मिनिमम कार्बन तो इतना तो होना, 1 कार्बन तो भी होना। तो ये क्या हो गया, कीटोन हो गया, राइट। अगर इधर H आ गया तो वो कहीं में चला गया, फिर अल्डिहाइड में चला गया। चलो इसका नाम देना आपने को। अब फर्स्ट रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। रूल सबके सेम है, पहला रूल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। कितने कार्बन की चेन मिली, 3। अब नंबरिंग देना है आपने को। तो ये जो अपना मेन अंदर का ग्रुप है ना, ये वाले कार्बन को नंबर कम से कम मिलना चाहिए। सपोज अगर मैं नंबरिंग कर रहा हूँ राइट साइड से, तो नंबर क्या मिल रहा है, देखो 1 2 3, कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अगर लेफ्ट साइड से करा तो 1 2 3, दोनों साइड से कौन सा नंबर मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है। जस्ट गो विथ एनीवन, कोई भी नंबर फॉलो करो फिर, ठीक है। चलो ऊपर के ये वाले फॉलो करता हूँ। कोई और सब्स्टिट्यूएंट अटैच है इसको, नहीं है, तो डायरेक्ट कहाँ पे जाने का, वो हो गया शायद वर्ड रूट पे जाने का सीधा। द वर्ड रूट फॉर 3 कार्बन, प्रोप, लिखो प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, क्या लगाने का, AN, है ना, प्रोपेन। अब यहाँ पे पोजीशन दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि पोजीशन फिक्स दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि कीटोन जो है कभी भी दोनों के बीच में है।
तो ये 3 कार्बन है, यानी कि ये बीच में वाले कार्बन पे है 2 नंबर वाले, प्रोपेन 2 एंड द सफिक्स फॉर कीटोन इज ONE। क्या लगाएंगे? ONE। तो इसका नाम क्या बन गया? प्रोपेन 2 ONE। इसका कॉमन नेम है एसीटोन। कॉमन नेम क्या है? एसीटोन है। ये कीटोन का पहला फैमिली मेंबर है जिसके अंदर दोनों साइड से क्या है? सिर्फ मिथाइल ग्रुप अटैच है। 1 नंबर कार्बन से तो कम वाला कोई कार्बन है नहीं ना, ये पहला कार्बन मिथाइल ग्रुप है। इधर से मिथाइल, इधर से मिथाइल, क्या बन गया? प्रोपेन 2 ONE। सपोज अब मैं ऐसे करूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, अब क्या होगा? द रूल सेज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। कितने कार्बन की चेन है इसके अंदर? 4 कार्बन की, राइट। नंबरिंग देना है, नंबरिंग कहाँ से देंगे? राइट साइड से। लेफ्ट साइड से क्यों नहीं? 1 2 3। अगर लेफ्ट साइड से गए तो कितना नंबर मिल रहा है? 1 2 3 नंबर मिल रहा है। उधर से आए तो 2 मिल रहा है। छोटा कौन है? लोवेस्ट नंबर कौन है? 2 है, तो इधर से दो। फिर ये हो गई सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 हो गया। अब क्या करेंगे? कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है क्या? नहीं है। डायरेक्ट वर्ड रूट पे आओ। वर्ड रूट फॉर 4 कार्बन इज ब्यूट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड AN। कितने नंबर कार्बन पे अटैच है? 2 ONE। सिंपल। इन दिस वे दिस इज नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। द नेक्स्ट एग्जांपल इज यहाँ पे क्या करेंगे? रूल फॉलो, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ढूंढो आप कहाँ पे कौन से ट्रेन पकड़ना है। ऐसा जाएंगे क्या? नीचे से आगे ऐसे जाएंगे? ऊपर जाएंगे? कैसे जाएंगे? अपना जो मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, ये फंक्शनल ग्रुप आपके लॉन्गेस्ट चेन में आना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं है। काउंट करो, देखो मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6। इतनी टफ वाली मैंने काउंट करा। अब बाकी आप ढूंढो। मेरे हिसाब से 6 नंबर की मिल रही है मेरे को। हाँ, नेक्स्ट सपोज 1 2 3, बट ये चेन तो होगी ही नहीं क्योंकि अपने ग्रुप अंदर लेना है। सपोज 1 2 3 4 5 6, 6 की मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 6, 1 2 3 4 5 6 6, सब तरफ से गए तो 6 मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 हो सकता है ना, कहीं पे भी जाओ 6 मिल रहे हैं ना, बट लॉन्गेस्ट चेन अपने को। चलो ठीक है, वही लेता हूँ मैं। ये ऐसा ठीक है, मिल गई 6 नंबर के लिए चेन मिल गई। अब नंबरिंग करेंगे। आवर दिस मेन ग्रुप शुड गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। तो यहाँ से करूँ या यहाँ से करूँ? राइट साइड से करूँ। हियर 1 2 3, आई एम गेटिंग 3 नंबर। अगर यहाँ से आता था तो 1 2 3 4 आता था। तो ये वाला ईजी है, कम से कम नंबर मिल रहा है 4 5 एंड 6। चलो चेन मिल गई, नंबर कर दिए। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2 क्या है यहाँ पे? दीज आर मिथिल ग्रुप, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। पहले उसको लेना पड़ेगा, राइट। कितने नंबर कार्बन पे हैं? 5। ये भी 5 पे है, ये भी 5 पे। क्या लिखेंगे फिर? 5 5 डाई मिथाइल। वेरी गुड, 5 5 डाई मिथाइल। फिर अब लेंगे वर्ड रूट को। कितने कार्बन है? 6। वर्ड रूट क्या बनेगा? हेक्स। कार्बन कार्बन सब तरफ सिंगल बॉन्ड तो AN। कितने नंबर कार्बन पे अपना ग्रुप अटैच है? 3 ONE। करेक्ट, इजी है। दिस इज द कीटोन 5 5 डाइमिथाइल हेक्सेन 3 ONE। चलो नेक्स्ट वाला। Next example like this. What will you do? Select the longest chain. 1 2 3 4 5 6 7, हाईएस्ट 7 की मिल रही है, और तो कोई है नहीं इसको अटैच। चलो अब सेकंड नंबर क्या है? नंबरिंग। अब यहाँ पे 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं। एक है अपना कीटोन, दूसरा है डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मीन्स अल्कीन। तो कीटोन वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे या फिर अल्कीन को देंगे? अभी मैंने यहाँ पे पूरे ऑर्डर निकाला था।
ऑब्वियसली किसको देंगे, कीटोन को देंगे, क्योंकि एसिड के बाद अल्डिहाइड, फिर कीटोन, अल्कोहल, अल्कोहल के बाद अल्कीन है, तो बहुत नीचे है ये, तो ऊपर कौन है, कीटोन, इसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो अपने दो रास्ते हैं, या तो यहाँ से जाओ नहीं तो यहाँ से जाओ। नंबरिंग अपन बीच में तो स्टार्ट नहीं कर सकते, कोई तो एक एंड से जाना है। अगर यहाँ से गए तो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, 1 2 3 4, इधर से मुझे 4 नंबर मिल रहा है। अगर यहाँ से गया तो 1 2 3 4, दोनों तरफ से 4 ही मिल रहा है, कौन से भी नंबर फॉलो करो, ठीक है। अच्छा, दोनों तरफ से 4 मिल रहा है, बट अगर यहाँ से गया तो इसको भी फिर कम से कम नंबर मिलना चाहिए। फिर जब दोनों तरफ से सेम मिल रहा है तो अपन सोचेंगे कि इसको कम से कम मिलना चाहिए। फिर तो नंबरिंग शुरू कहाँ से करेंगे, राइट साइड से। फिर 1 2 3 4 5 6 7 इन दिस वे। अब कोई अटैच सब्स्टिट्यूएंट है क्या उसको, इथाइल मिथाइल कुछ है नहीं है, डायरेक्ट कहाँ जाओ, वर्ड रूट। 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है, हेप्ट, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, अब नंबर दिखाना पड़ेगा। हेप्ट 1 नंबर से शुरू हो गया है, 1 EN और 4 नंबर कार्बन पे ONE, हेप्ट 1 EN 4 ONE, दिस इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इजी है एल्डिहाइड कीटोन। अब क्या करेंगे, लुक केयरफुली। पहला रूल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। कार्बन कितने मिल रहे हैं देखो, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक है अल्कोहल, दूसरा है कीटोन, बट वी नो द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज फॉर कीटोन, इसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ये साइड से, क्योंकि यहाँ से गए तो 1 2 3 मिल रहा है, यहाँ से आएंगे तो 1 2 3 4 मिलेगा, ज़्यादा है 4, 3 वाला कम से कम है। 1 2 3 4 5 6। कोई और अटैच है ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट वगैरह कुछ अटैच है नहीं है। ये अपना क्या बन गया, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप मेन कोई तो एक ही होगा ना, दो तो हो नहीं सकते एक साथ, तो ये वाला मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये बन गया एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको पहले भी ले सकते हैं, कैसा, कितने नंबर कार्बन पे है, 5। OH मीन्स दिस OH ग्रुप जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट जब बनेगा, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल, 5 हाइड्रोक्सी, क्या हो गया, 5 हाइड्रोक्सी। उसके बाद कितने कार्बन के रिंग है, 6, क्या हो गया, हेक्स, सिंगल बॉन्ड है, AN, हेक्सेन, 3 ONE, आ गया इस तरह से, 5 हाइड्रोक्सी हेक्सेन 3 ONE। जब 2 फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो जो मेन है वही आखिर तक आएगा, जो उसके बाद कम वाला है वो नाम के पहले आएगा, 5 हाइड्रोक्सी हेक्सेन 3 ONE, राइट। जो नंबर पे वो लिखने का, 2 हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी जो भी है, OH ग्रुप जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो उसको पहले लेने का, राइट। ओके, द लास्ट एग्जांपल नाउ। अब क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन देखो कितने कार्बन की है, 1 2 3 4 5 कार्बन की है। यहाँ पे 2 ग्रुप है, एक तो कीटोन है, दूसरा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, आप नंबरिंग करना है, ये अपना मेन ग्रुप है, इसको कम से कम नंबर देंगे। सो 1, ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5। कोई और ग्रुप अटैच है क्या, कोई भी नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, वर्ड रूट फॉर 5 कार्बन पेंट। अब सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। पोजीशन कहाँ से शुरू हुआ है, 4th कार्बन शुरू हुआ, तो पेंट 4 YNE, देन 2 ONE, करेक्ट, समझ में आएगा। इस तरह से इसका नाम बन गया, पेंट 4 YNE। हाँ, कट कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट YN भी ले सकते हैं, 4 YN 2 ONE। In this way, this is the name of this compound. So this was all about the nomenclature of aldehydes and ketones. Okay, before concluding the lecture, here I had written the priority order of the organic compounds. Here the highest priority is for the carboxylic acid, then after that is the sulfonic acid, then esters, then acid halides, amides, nitriles, aldehydes, ketones, alcohols,
thiols, amines. After that carbon carbon double bond, then carbon carbon triple bond, and then carbon carbon single bond. And here not but last but one ether and the last halogen. This is the priority order. Out of this we generally use the acids, then esters, this ester, this acid, after that aldehyde, ketones, alcohols, then carbon carbon double bond, triple bond and single bond, and some halogens. So the halogens are getting lowest priority and the acid is having the highest priority in the organic compounds. So if there are multifunctional groups in a same compound, एक से अगर ज़्यादा अगर कोई फंक्शनल ग्रुप्स हैं कंपाउंड के अंदर, तो हम इस प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करेंगे कि किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है और किसको कम प्रायोरिटी देना है. लाइक सो इन दिस वे नाउ दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर. So today just we are completed the nomenclature of the aldehydes and ketones. In the further lecture we are going to learn about the nomenclature of the next organic compounds. So thanks for watching this video. Keep watching, keep learning.